Hello students, in the last lecture we did numericals related to Faraday law of electromagnetic induction. In Faraday law of electromagnetic induction, the induced EMF was equal to the time rate of change of the magnetic flux. That is, what is the concept of our chapter? The change in the flux or the change in the magnetic flux induces the current or EMF. Now we put a negative sign in that law and we have written that negative sign indicate the direction of the induced EMF or induced current, or the negative sign is due to Lenz's law. Now Lenz gave a law which will determine the polarity of the induced EMF. So in experiment number 1, when the north pole was approaching the coil, the galvanometer shows deflection on one side, say right, but when the north pole was receding away, the deflection was opposite, that is, say left, which indicate the reversal of current. It means there is some law or there is some concept which is responsible for the induction of the EMF. So Lenz's law help us to find out the direction of the induced EMF or the direction of the induced current, whether the current in the coil or the circuit should flow clockwise or anti-clockwise. That can be easily determined if we know the Lenz's law. Now, Lenz's law give the polarity of magnetic induced EMF. You have to remember this. What is the Lenz's law? Lenz's law will give you the polarity of induced EMF. And from that polarity, we will determine whether the direction of the current in the coil is clockwise or anti-clockwise. So let us first see the statement and then we will try to understand the polarity of induced EMF again from that experiment number 1, Faraday's experiment number 1. So what is Lenz's law? The polarity of induced EMF is such that it tends to produce current which opposes the change in magnetic flux that produced it. Now try to understand the meaning of this statement. The polarity of induced EMF is such that it tends to produce current. So if there is a potential difference or a EMF, that is a maximum potential difference, then we will get a current, induced current. The current will be produced in such a way which opposes the change in the magnetic flux that produced it. Now we know that the change in magnetic flux is responsible for the induction or the generation of the current. Now once this current is induced, it will produce its own magnetic field or own magnetic flux which will oppose our flux. So it is like that the magnet which was responsible for the induction in the coil, and once the current is induced, that current will oppose the change. So the coil does not like the change because the current was induced forcefully. Suppose that we have forcefully induced the current, then that current will again produce a magnetic field and it will oppose the magnet or the motion of the magnet. तो इस लॉ के बारे में ऐसा बोलते हैं कि जिसने इसको प्रोड्यूस किया, करंट को जिसने प्रोड्यूस किया, हु प्रोड्यूस द करंट इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1, द मोशन ऑफ द मैग्नेट. नाउ द मोशन ऑफ द मैग्नेट प्रोड्यूस अ करंट एंड दैट करंट विल अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट. तो जिसने इसको प्रोड्यूस किया है, जिसने इसको इंड्यूस्ड किया है करंट को, ये करंट उसी के मोशन को या उसी को अपोज करता है. ये इस तरह से हुआ कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, जिस थाली में खाया उसी में क्या कर दिया, छेद कर दिया. जिसने इसको प्रोड्यूस किया
उसी को ये अपोज करता है। अगर ये अपोज नहीं करता तो हमारे फिजिक्स के कई लॉ डिस्ट्रॉय हो जाते या वैलिड नहीं रहते। सो एक्चुअली ये अपोज करता है, बट our law are maintained, our laws are maintained, and indirectly we will try to connect this Lenz law with the conservation of energy. That is, energy can neither be created nor destroyed. And earlier also I said many times, energy is never obtained free of cost. Energy free में नहीं मिलती है. You have to do some work, and when the work is done against something, then only the energy will be obtained or energy will be stored. The work was done to bring a unit positive charge from infinity to a point inside the field. So we got the concept of potential. When the work was done against the electric field from one point to another in the field, that gave rise to the potential difference. If there is a height difference, then you will get a gravitational potential energy. If you do the work against the restoring force, then you will get an elastic potential energy. So energy free में कभी नहीं मिलती. You have to do the work. Now whatever work you do, that work will be stored in the body. And when that external force is removed, you will again obtain the same energy back, but its form will be transferred. It will be transformed from one form to the another. So it works on that concept. Let us see what does it means. So you have to first remember that the polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current, but this current किसको oppose करेगा? Change in the magnetic flux that opposed it. Now it will be more clear if I consider experiment number 1. So in experiment number 1 we have a coil. Now I am not connecting a galvanometer. Directly we will try to find out what will be the direction of the current induced in it. Suppose the North Pole is approaching the coil. So when the North Pole is approaching the coil, the magnetic flux through the coil will increase. The magnetic flux through the coil will increase. Now current should be produced in such a way that current should also produce the magnetic flux or magnetic field lines, and it should oppose it. Now our observation is from the side of the magnet. तो जिस साइड मैग्नेट है वहां से अपने को ऑब्जर्वेशन लेना है. सो इट इज लाइक दिस. कॉइल ऐसे रखी हुई है. आई एम एन ऑब्जर्वर. ये मेरा मैग्नेट नॉर्थ अप्रोच हो रहा है. अब नॉर्थ अप्रोच होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज. दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल. तो इसके अंदर करंट ऐसा प्रोड्यूस होना चाहिए कि ये मुझे ही अपोज करे. मुझे मीन्स मैग्नेट को ही क्या करे? अपोज करे. तो क्या होगा? इधर कौन सा फेस बनेगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ जाए? नाउ वी नो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल. तो यहां पे दिस फेस बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल. दिस फेस बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल. तो ये एन बना दिया. एन बनाने का मतलब इसमें करंट कैसा प्रोड्यूस होगा? एंटी क्लॉकवाइज. सो करंट फ्लोइंग इन इट, the direction of the induced current is anti-clockwise. Now you see that if this coil face behave like a north pole, your north is approaching, so it will oppose us. Now it will generate its own magnetic field because the current is induced, and this current produces its own magnetic field or its own magnetic flux. So इसकी field lines हमारी field lines को क्या करेगी? अपोज करेगी. यानी पास आ रहा है तो इसको ऐसे लर्न करना है. पास आ रहा है तो आने नहीं देना. तो नॉर्थ आ रहा है, नॉर्थ इज कमिंग टूवर्ड्स मी, मुझे उसको नजदीक नहीं आने देना. तो आई शुड ऑल्सो बिहेव लाइक अ नॉर्थ सो दैट देयर इज अ रिपल्शन. तो डायरेक्शन
हमें याद नहीं रहे तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पास आए तो आने नहीं देना, दूर जाए तो जाने नहीं देना। अब नॉर्थ पास आ रहा है, अगेन योर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम शुड बी फ्रॉम द साइड ऑफ द मैग्नेट, पीछे से ऑब्जर्वेशन लोगे तो ऑपोजिट आंसर आएगा, दैट वी नो। तो नॉर्थ अगर नजदीक आ रहा है तो कॉइल को कैसा बिहेव करना है, ये लाइन याद रखो, विच अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग but the current is produced in such a way that it opposes the magnetic flux। मैग्नेट के मैग्नेटिक फ्लक्स ने इंडक्शन किया है और करंट प्रोड्यूस होने के बाद वो मैग्नेट के ही मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। आए तो आने नहीं देना, जाए तो जाने नहीं देना। सो द पोलैरिटी विल चेंज। सो नॉर्थ इज अप्रोचिंग, तो नॉर्थ नजदीक आ रहा है तो नॉर्थ बन जाएगा। अब इसका अपोजिट सोचो, अब नॉर्थ दूर जा रहा है, नॉर्थ दूर जा रहा है मतलब फ्लक्स घट रहा है, तो भाई इसको दूर नहीं जाने देना, तो इसको क्या बनना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट करना है तो सिंबल में बना देता हूं साउथ का एस, और एस के ये एरो देखो क्लॉकवाइज है, तो करंट कैसा फ्लो हो जाएगा इसमें, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो पास आए तो आने नहीं देना, जाए तो जाने नहीं देना। तो इसकी इसलिए गैल्वेनोमीटर की पोलैरिटी बदल जाती थी। तो लेंस ने क्या बोला, एंड ही गिव द एक्सप्लेनेशन। अभी हम सिर्फ उसको समझ रहे हैं या लर्न कर रहे हैं ऐसा समझ लो, पर अभी उसका अपने को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा फ्रॉम द लेंस लॉ, और इट इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो कैसे याद करना है भाई, फ्लक्स बढ़े तो बढ़ने नहीं देना, तो फ्लक्स बढ़ रहा है वो, तो इसको ऐसा समझ लो हो तीन तीर मार रहा है कोई अपने को, एरो है, ठीक है, ऐसा कोई तीर मारता नहीं है पर मान लो तीर मार, तो अपने को भी तीन तीर सामने मार देने की, नलीफाई करना है उसको। तो अपोजिट अपनी फील्ड लाइंस भी बाहर निकलनी है, तो नॉर्थ पोल। फिर वो भाग रहा है अपना सामान लेके, अब अपनी जो ये तीन तीरें उसने दी थी उसको पकड़ रखना है, पकड़ लेना है, अट्रैक्ट करना है। तो नॉर्थ को अट्रैक्ट कौन करेगा, साउथ। तो साउथ के लिए करंट कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसका अपोजिट सोचते हैं, चलो कॉइल है, अगेन साउथ अप्रोच हो रहा है, साउथ इज अप्रोचिंग। अब साउथ की पहले तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन बना दे, अब एरो बदल जाएगी हो, मैग्नेटिक साउथ के इनसाइड जा रही है। अब बोलो साउथ नजदीक आ रहा है, चलो फटाफट अपने आप बोलो, नजदीक नहीं आने देना है। तो साउथ को नजदीक नहीं आने देना है, तो यहां भी क्या बनना चाहिए, साउथ बनना चाहिए। साउथ बनेगा तो करंट कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। देख लो दोनों अपोजिट है, यही तो पढ़ा था हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, तब अपने को डायरेक्शन की समझ नहीं थी, अब डायरेक्शन की समझ आ गई। सो साउथ नजदीक आ रहा है तो आने नहीं देना, तो इसको साउथ बन जाएगा, साउथ बनना है मतलब डायरेक्शन पूछूंगा करंट की, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। चलो इमीडिएटली you give the answer before I say answer। the south is receding away, साउथ भाग रहा है, साउथ को भागने नहीं देना है, पहले साउथ का मैग्नेटिक फ्लक्स बना दे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो घट रहा है अपना, अब साउथ को भागने नहीं देना। अब साउथ को नहीं भागने देंगे भाई, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा अपने को, नॉर्थ पोल बनाना पड़ेगा, अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ पोल बनाएगा तो करंट कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका अपोजिट। नाउ दिस इज व्हाट द लेंस लॉ टेल अस, दिस इज हाउ you will determine the polarity of the induced EMF or the direction of the induced current। तो अपने सिंपल भाषा में याद रखने का, चेंज पसंद नहीं है, कॉइल को चेंज पसंद नहीं है। फ्लक्स बढ़ता है तो बोले बढ़ने नहीं दूंगा, घटता है तो बोले अब घटने भी नहीं दूंगा।
यानी जो सोर्स करेगा उसका उल्टा करना है। बढ़े तो बढ़ने नहीं देना, घटे तो घटने नहीं देना। अब इसका लॉजिक समझते हैं कि ऐसा क्यों करता है। तो सम टाइम टू प्रूव द law or concept, we have to consider theory of contradiction. So in many theorems in mathematics we use this theory of contradiction. Theory of contradiction मतलब उल्टा सोचना कि चलो ऐसा नहीं होता तो क्या होता। तो ये तो सीधे सबसे पहले हमने राइट लॉ पढ़ लिया, दिस इज द राइट थिंग, बढ़े तो बढ़ने नहीं देना, घटे तो घटने नहीं देना। अब हम इसका उल्टा सोचते हैं। क्या करना है, इसका उल्टा सोचना है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली अपने को उसको सोचना पड़ेगा। अब हमने देखा जब नॉर्थ अप्रोच हो रहा है तो इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है। अब अपने उल्टा सोचते हैं, दिस इज कॉल्ड थियरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। इसको क्या बोलते हैं, थियरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। क्या भाई नहीं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज होगा तो देखो अपने लॉ ओबे भी होने चाहिए। सो कोई भी लॉ वैलिड तब होता है जब फंडामेंटल लॉ नेचर के सब वैलिड हो। एंड वी हैव स्टडीड द फंडामेंटल लॉस ऑफ नेचर। फंडामेंटल फोर्स भी पढ़े हुए हैं नेचर के और फंडामेंटल लॉ भी पढ़े हैं। वन ऑफ द फंडामेंटल लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो चलो उल्टा सोचते हैं, इसको बोलते हैं थियरी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, उल्टा सोचना। फिर उल्टा सोचते सोचते जब कंक्लूजन पे आएंगे तो लास्ट लाइन बोलेंगे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता मीन्स हमने जो सोचा वो गलत था। तो हम सोच लेते हैं, पहले क्या करते हैं, सोच लेते हैं। चलो सोचते क्या है, उल्टा सोचते हैं कि नॉर्थ अप्रोच हो रहा है, द नॉर्थ इज अप्रोचिंग। Now these are the assumptions. These are the assumptions. अब सपोज तुम बोलो कि सर नॉर्थ अप्रोच हो रहा है, तो लेट अस एज्यूम द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल इज क्लॉकवाइज। द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल इज क्लॉकवाइज। उल्टा सोचा इसका, दिस इज द एक्चुअल। अब अगर करंट इसमें क्लॉकवाइज है तो व्हाट शुड बी इट्स पोलैरिटी? इट्स पोलैरिटी शुड बी साउथ। तो लेंस कहता है कि अगर इस मैग्नेट को मैं फ्लिप करूं, थोड़ा सा मोशन करूं, फ्लिप टुवर्ड्स दिस कॉइल, इसके मोशन में आते ही इंडक्शन तो हो जाएगा। मैग्नेट के मोशन में आते ही क्या हो जाएगा, इंडक्शन। तो लेंस कहता है कि मैं इसको खुद नहीं ले जाता, मैं सिर्फ पुश कर देता हूं, अ जेंटल पुश। अगर मैं कर सकता तो, अगर मैं मैग्नेट को जेंटल पुश दे दूं और अगर ये साउथ बन जाता, बना के नहीं वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमें पता है वो बनने वाला नहीं है क्योंकि बनना तो उसको, लेकिन अगर सपोज वो साउथ बन जाता तो क्या होता? तो बोले साउथ बनते ही ये मेरे नॉर्थ पोल को, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता अपनी तरफ। तो इसका एक्सेलरेशन या इसकी स्पीड क्या होती, बढ़ जाती। इसकी स्पीड क्या होती, बढ़ती। यानी इस बार मैग्नेट को जेंटल पुश करूं, सिर्फ एक बार पुश करके छोड़ दूं, एक बार पुश करके इसको क्या करूं, सिंपल सा छोड़ दूं, और अगर इमीडिएटली वो साउथ बन जाता है तो बोले अगर वो साउथ बनता है तो देयर शुड बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ इफ देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट्स स्पीड शुड इंक्रीज। सो गिविंग gentle push to a magnet should increase its speed
एंड हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बोलता है उसकी स्पीड बढ़ती तो बोले मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता तो व्हाट विल हैपन, एंड हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज, so induced EMF will increase, induced EMF should increase। अब अगर induced EMF समझ लो या induced करंट बढ़ता तो उसकी साउथ पोलरिटी बढ़ती, यानी वो स्ट्रॉन्ग साउथ होता जाता। अगर वो स्ट्रॉन्ग साउथ होता जाता तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ता। इट मीन्स द वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग, and if velocity keeps on increasing, the acceleration will increase. If acceleration increases, the force is increasing. If the force is increasing, the work is being done on the bar magnet by the coil. Now अपने आप वर्क हो रहा है, there is no external source, there is no external source। इसका मतलब इससे तो एक ऐसी मशीन बनती कि नो एक्सटर्नल एक्सपेंस इज देयर, एक जेंटल पुश ही दिया है ऐसा माना है हमने, उसके सिवा इसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया किसी ने भी, और अपने आप एनर्जी का जनरेशन हो रहा है। कौन सी एनर्जी जनरेट हो रही है, द करंट विल इंक्रीज, इंड्यूस करंट शुड इंक्रीज, यानी करंट का प्रोडक्शन अपने आप हो गया। एक बार जेंटल पुश किया, अब करंट बढ़ता जाएगा और ये मैग्नेट मूव करता जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस मोर एंड मोर करंट। फिर तो बोले ऐसी एक मशीन बन जाए जहां देयर इज नो खर्चा, कोई खर्चा नहीं है उसके ऊपर, और अपने आप एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी भी मिले। नाउ दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ एनर्जी, दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज energy is stored or energy is obtained when some external force is applied on it। फ्री में एनर्जी नहीं मिलती है। यहां पे फ्री में एनर्जी का प्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुमको फ्री में मिलने लग गई। अब एनर्जी फ्री में मिलने लग जाए विदाउट एनी खर्चा, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं रहा। तो बोले फिर तो इससे ऐसी मशीन बना दो जहां थोड़ा सा स्टार्टअप करो, फिर नो एक्सटर्नल वर्क इज रिक्वायर्ड। नाउ विच इज नॉट पॉसिबल। सो लेंस सेज कि दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल सकती है, एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल सकती है। हाँ, यहां पे जेंटल पुश है, सो वी सेड जेंटल पुश के you initiated the process, you initiated a machine। now without expending any energy, expending means without खर्चा, बिना कोई खर्चे किए तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो लेंस सेज कि जो हमारा एजम्पशन है, एजम्पशन व्हाट इज अवर एजम्पशन, ये साउथ वाला एजम्पशन इज रॉन्ग। सो अवर एजम्पशन is wrong। this is theory of contradiction के उल्टा सोचा, फिर उल्टा सोच के इस डिसीजन पे पहुंचे कि भाई जो हमने सोचा वो पॉसिबल नहीं है। इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, अगेंस्ट द लॉ ऑफ फिजिक्स, अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर ऐसा होता तो आज हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिल रही होती, हमारे पास ऐसी मशीन होती जो एक बार स्टार्ट कर देते और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती या करंट प्रोड्यूस होता रहता, फिर तो हमें लाइट बिल कुछ देने की जरूरत नहीं थी। शायद हम लाइट स्विच ऑफ भी नहीं करते क्योंकि फ्री का प्रोडक्शन है। तो विच इज नॉट, तो अच्छा है ऐसा कुछ हुआ नहीं, वरना हम तो इस एनर्जी का खर्चा फ्री में करने लग जाते। तो अब लेंस बोल रहा है कि भाई तुमने जो सोचा उसका उल्टा। अब क्या हम उल्टा, यानी उल्टा हेयर मीन्स कि अब अगर नॉर्थ लेंगे तो क्या लॉ ओबे होगा। पहले तो ये समझ लो, यहां
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। कहाँ कोई एनर्जी ही नहीं लग रही, ऊपर से प्रोडक्शन हो रहा है। इट इज लाइक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, energy can neither be created nor destroyed. So here energy is being created by initiating a small process which is not yet possible. तो एनर्जी लॉ वैलिड नहीं है। तो क्या हमने जो या लेंस ने जो बताया, क्या वो सोचते हैं तो सही में एनर्जी लॉ ओबे होता है? तो चेक करते हैं अब लेंस क्या कहता है। अब लेंस की असली कहानी सुनते हैं। लेंस ने बोला तुम गलत सोचो, हमने गलत सोच लिया, तो उसने ये कहानी समझाई हमें। तो हमने जो गलत सोचा उसका उसने एक्सप्लेनेशन दिया, ऐसे ही लॉ नहीं बना दिया उसने। तो उसने बोला भाई तुमने जो सोचा अब रॉन्ग, अब मेरी सुनो। अब उसकी सुनते हैं अपने। तो नॉर्थ अप्रोच हुआ तो लेंस बोलता है नॉर्थ बनेगा, अपोज करेगा। तो व्हाट ही सेज कि when you are bringing a north near a coil and if it becomes a north, it do becomes north now। तो वो बोलता है कि अगर ये नॉर्थ बनता है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड या इसका मैग्नेटिक फ्लक्स तुमको अपोज करेगा, और अगर वो तुमको अपोज करेगा तो यू नीड एन एक्सटर्नल वर्क और यू नीड एन एक्सटर्नल फोर्स to induce the current, and that is what we have the work energy theorem or law of conservation of energy। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेंस बोल रहा है कि you are doing the work against the induced current, and as long as you do the work the current will be induced। तो यही तो Faraday experiment, what was Faraday observation कि as soon as you stop the motion in any of this experiment, whether it is experiment number 3, if you stop tapping the key or if you stop the motion of either of the two coils in experiment number 2 or in experiment number 1, the relative motion, conclusion लिखा था याद हो तो, the relative motion is responsible। तो अगर ये मोशन बंद करते हो बोले, means you are not doing any work, तुम कोई वर्क नहीं कर रहे हो, मतलब तुम कोई खर्चा नहीं कर रहे हो, और अगर तुम खर्चा नहीं कर रहे हो तो तुम्हें एनर्जी भी मिलने वाली नहीं है, एंड देयरफॉर द करंट विल नॉट बी इंड्यूस्ड। तो ही सेज कि यहां नॉर्थ पोल बनना इसलिए जरूरी है ताकि जब तुम मैग्नेट लाओ इसके नजदीक तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुमको अपोज करे। जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करने जाते हैं या स्ट्रेच करने जाते हैं तो वो हमको अपोज करती है। तो क्या हम स्प्रिंग का यूज छोड़ देते हैं? वी डू द वर्क अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, एंड व्हेन वी रिलीज दैट एक्सटर्नल फोर्स, that energy is obtained back, the elastic potential energy is converted into the electrical energy। So if I am mechanically moving the bar magnet, mechanically मतलब मैं अपनी मैकेनिकल एनर्जी या मेरी मस्कुलर एनर्जी यूज कर रहा हूं, तो वो एनर्जी लेंस कह रहा है कहीं नहीं जा रही है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। उसके सामने तुम्हें करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। सो एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बोले बदल रही है वो। और कोई भी एनर्जी चाहिए तो यू फर्स्ट डू द वर्क अगेंस्ट द फील्ड। तो हियर द करंट इज इंड्यूस्ड इन सच अ वे that it will oppose the change in the flux, and when this coil or the current start opposing, I have to spend my energy, I have to do the external work, or I can say I have to apply the external force to overcome the opposition, and when I try to overcome that opposition I get same amount of energy, assuming there is no loss in the wire or the resistance of the coil is zero, though 100% efficiency is not possible, but it should be clear that you are doing the work against the induced current। So again you see this north is receding away,
नॉर्थ रिसीड हो रहा है तो अपने आप तो जाएगा नहीं मैग्नेट, तो तुम खर्चा कर रहे हो, यू आर रिमूविंग आइदर यू से मैकेनिकल एनर्जी और अ मस्कुलर एनर्जी, तुम फिजिकली उसको रिमूव कर रहे हो। तो करंट ऐसा इंड्यूस्ड होगा कि वो तुमको जाने नहीं देगा, मतलब वो तुमको अट्रैक्ट करेगा, बट यू हैव टू गो, you have to do the work, and if you stop there then again current immediately becomes zero। यानी करंट भी ऐसा है कि तुम वर्क करो तो करने नहीं देता है, और तुम रुक जाओ तो खुद भी जीरो हो जाता है। मतलब करंट का प्रोडक्शन करने के लिए you have to spend energy, and whatever energy you spend, that much same amount of energy is obtained in ideal situation। This is the Lenz's law। The current is induced in such a way that it opposes the change in the magnetic flux which has produced it। So this concept support the law of conservation of energy कि तुमने जो खर्चा किया उसी खर्चे पे at the expense of that work you should obtain the same amount of energy in ideal situation। Again we are assuming there is no loss। So this is all about we have for a Lenz law। Now I hope you understand the direction of the induced current। We will see in the coming lecture there are many examples where you have to determine the direction of the induced EMF or induced current। Have a nice day।